Okay, guys, so we are starting with the new topic, that is independent events. Okay, so last lecture we did an example where I'll repeat that example again, where we had seen dependent events, right? The example was a bag contains two red and two black balls. Two balls are drawn one by one. This is very important, without replacement. Okay, so if we are drawing two balls one by one without replacement, what is going to happen is we have a bag. In that we have two red balls R1, R2 and two black balls B1, B2. So if you are asked what is the number of sample points going to be, so number of sample points will be like number of ways in which you can do the first draw, and there will be number of ways in which you can perform the second draw. Okay, so number of ways in which we can perform the first draw is, हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पे. We have four balls, right? So we can say R1, R2, black 1, black 2. The first ball can be drawn in how many ways? Four ways, right? Once the first ball is drawn, what will happen? Let us say ball drawn is black 2. So यहाँ से black 2 चला जाएगा. अब second draw के टाइम पे see it is one by one without replacement. मतलब वो बॉल जो वापस बाहर आया है, जो बॉल हम लोग ने देखा है, that is the second ball from the bag which is a black ball, तो उसको अगर हम लोग वापस अंदर नहीं डालते हैं तो अभी बैग के अंदर कितने बॉल्स हैं? We have 3 balls. And therefore we say second draw can be done in 3 ways, right? So the total number of ways in which I can perform the draws will be 12 ways. Okay, यहाँ पे जाते हैं. We go to this example where again we are going to draw 2 balls one by one, but the word here, the last thing is very important here. It is with replacement. Okay, with replacement का meaning क्या है वगैरह वो सब अभी हम लोग समझते हैं. So what happens in this? If you try to find out the natural number of sample points, in how many ways can this take place? Right? In how many ways can this experiment take place? We need to find that. So वापस यहाँ पे आएगा first draw. Right? यहाँ पे हम लोग को मिलेगा second draw. फर्स्ट ड्रॉ में हम लोग के पास नंबर ऑफ वेज है 4. 4 में से कोई भी एक बॉल बाहर आ सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है. सपोज यहां पे भी आएगा ब्लैक 2 आफ्टर द फर्स्ट बॉल. बैग में से निकाला, बॉल देखा, ब्लैक इन कलर है, सो बाहर आया. सपोज इट वॉज ब्लैक 2 विच केम आउट. अभी कलर नोट कर दिया हम लोग ने, देख लिया भाई क्या टाइप का बॉल है, उसको वापस बैग में डाल देना. पुट इट बैक इनसाइड द बैग. विल पुट इट बैक इनसाइड द बैग, द ब्लैक बॉल. तो क्या हो जाएगा? वापस अगर बॉल अंदर आ जाएगा तो वापस बैग में हमारे पास कितने बॉल्स रहेंगे? 4 बॉल्स रहेंगे. दिस विल बी इनसाइड द बैग राइट नाउ. ओके, सो अगेन वी हैव 4 बॉल्स इनसाइड द बैग. R1, R2, black 1, black 2. कलर नोट किया, बॉल नोट किया और वापस बैग में डाल दे. सो वापस बैग के अंदर 4 बॉल्स है. यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे बैग में से हम लोग बॉल ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट सीइंग इनसाइड द बैग. इफ यू सी देन इट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. विदाउट सीइंग यू ड्रॉ, कलर देखा और बॉल को साइड में रख दिया. अब बैग के अंदर 3 बॉल है सेकेंड ड्रॉ के पहले. बट यहां पे सेकेंड ड्रॉ के पहले वापस देखेंगे बैग, तो बैग तो फुल है, 4 बॉल्स है वहां पे अभी भी. सो दिस टाइम द नंबर ऑफ वेज विल बी 4 into 4 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16 वेज. बहुत सिंपल है. यहां पे बेसिकली रिपीटेशन अलाउड नहीं है और यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, राइट? दूसरी बार भी सेम बॉल वापस बाहर आ सकता है बिकॉज यहाँ पे black 2 अगर आपने निकाला फर्स्ट ड्रॉ में, उसको वापस भी तो अंदर डाल दिया, तो अगेन black 2 कैन कम
out in the second draw also. So यहाँ पे repetition allowed है, whereas यहाँ पे repetition allowed नहीं है. Okay, so let us see sample space से देख के पता चल जाएगा वो. यहाँ पे sample space कैसा रहेगा? It will be red 1, red 2, red 1, black 1, red 1, black 2. ठीक है, फिर आएगा red 2, red 1, it can be red 2, black 1, red 2, black 2. फिर आएगा black 1, red 1, okay, I can put it as red 1, black 1, red 2, black 1, black 2. Then we get black 2, red 1, black 2, red 2, black 2, black 1. ओके, सो ये ऐसे हम लोग को 12 सैंपल पॉइंट्स मिलने वाले हैं. यहां पे सैंपल स्पेस बनाएंगे, थोड़ा अलग बनेगा. यू कैन हैव रेड 1 डाइस के जैसा 1,1. देन वी कैन हैव रेड 1 रेड 2, रेड 1 ब्लैक 1, रेड 1 ब्लैक 2. तो पहले रेड 1 का खुद के साथ और बाकी सबके साथ ले लेते हैं. फिर आएगा रेड 2, रेड 1, रेड 2, red 2, red 2, black 1, red 2, black 2. ओके, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा black 1, red 1, black 1, red 2, black 1, black 1, black 1, black 2. Okay, and then we have B2, R1, B2, R2, B2, B1, B2, B2. You can see diagonally अगर अपन ने देखा है तो yes, repetition यहाँ पे allowed है. So यहाँ पे sample space रहेगा 12 sample points का, वहाँ पे sample space रहेगा 16 sample points का. Okay, let us define events here. So A is the event that I'm going to get red in first draw. Okay. And let me define B. B will be the event that I get black in second draw. Because the draws are 1 by 1, तो हम लोग के पास जो है ऐसे दो अलग अलग ड्रॉस पे हम लोग इवेंट डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है. सो फर्स्ट ड्रॉ के नाम पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ इवेंट ए. सेम चीज रखता हूँ. फर्स्ट ड्रॉन इज रेड एंड बी बी द इवेंट दैट सेकेंड ड्रॉन इज ब्लैक. ओके, साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे. ये लास्ट लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, सो यू हैव अ फेयर आइडिया. ये वाला लास्ट लेक्चर नहीं किया हुआ है. सो इफ यू सी रेड इन फर्स्ट ड्रॉ, तो रेड इन फर्स्ट ड्रॉ हम लोग को यहां पे मिलेगा. ये 6 सैंपल पॉइंट्स में मिलेगा. सो दीज आर द 6 सैंपल पॉइंट्स व्हिच कैन बी कॉल्ड एज इवेंट ए. Okay, they belong to event A. What are events? Events are subsets of sample space. Then black in second draw. यहाँ पे black second में है, black second में, black second में, black second में, black second में है, तो black in second draw ये हो जाएगा B. Okay, event B. और ये वाला जो region है that comes with both A and B, so it is A intersection B. Okay, यहाँ पे आते हैं. सेम चीज, रेड इन फर्स्ट ड्रॉ. ये रहा रेड इन फर्स्ट ड्रॉ. ठीक है. देन वी हैव ब्लैक इन सेकेंड ड्रॉ. ब्लैक इन सेकेंड ड्रॉ ये रीजन है. सो हियर आल्सो यू कैन से ए, दिस इज गोइंग टू बी बी, एंड दिस इनसाइड इज एक्चुअली द ए इंटरसेक्शन बी. वेन डायग्राम अलग से नहीं बना रहे, इसी में बता दे रहा हूं आपको. ठीक है. सो इफ आई need to find out what is probability of B by A by B नहीं find कर सकते because first draw provided second draw has already occurred doesn't make sense. So it has to be B by A. B by A मतलब क्या होगा? Probability of B provided A has already occurred. Okay. So we have probability of B provided A has already occurred. Now इसमें
हम लोग को क्या मिलता है, सबसे पहले क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग को नीचे जो है वो सैंपल स्पेस मिल जाता है इवेंट ए, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब मुझे कंडीशन मिल गया है, कंडीशन मिल गया है कि पहला बॉल रेड है, सो द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। अगर ये कंडीशन नहीं मिलता तो मेरे पास चार ऑप्शन है, रेड 1, रेड 2, ब्लैक 1, ब्लैक 2, बट ये कंडीशन मिल गया है ना। तो अगर ये कंडीशन मिल गया तो मेरे पास अभी दो ही ऑप्शन है फर्स्ट ड्रॉ के लिए, इट कैन बी रेड 1 और रेड 2, राइट। सो क्या हो जाता है व्हेन दिस हैपेंस, द सैंपल स्पेस श्रिंक्स टू इवेंट ए। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, वापस रिवाइज कर रहे हैं कि जब भी ऐसा b by a दिया रहेगा तो अंडरस्टैंड b प्रोवाइडेड a हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज फर्स्ट बॉल व्हिच इज रेड इन कलर। हम लोग ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, फर्स्ट बॉल देखा रेड है और हम लोग ने इसको साइड में रख दिया और हमको मालूम है रेड है। अब जब हमको मालूम है रेड है तो फिर उसके बाद उसके अंदर व्हाट आर द चांसेस दैट b will occur? So a has already occurred, so a is there in place. उसके बाद a के existence के साथ what are the chances that b will occur? We have to find out probability of a intersection b upon p of a. Right? That is what we did in the last lecture. So पहले reduce हो जाएगा to a. अब यहाँ पे b occur नहीं हो रहा है, तो probability of b provided a has already occurred happens here in this region a intersection b. So these are the sample points which are favorable to b but are in a. तो कंडीशन के बाद सैंपल स्पेस वो बन जाता है, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो यहां पे आता है 4/12 upon, and then we take the probability of this 6/12. We can do that 6/12, 4/6 डायरेक्टली भी ले सकते थे, and that is what you're going to get. You're going to get it's 2/3. तो नेचुरल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बढ़ जाएगा। अगर पहला रेड है तो पहला रेड लिया, साइड में रख दिया, वी कैन सी स्टेप वाइज व्हाट इज द ट्रांजिशन हैपनिंग। सो फर्स्ट ड्रॉ हुआ और बोला गया कि फर्स्ट ड्रॉ में रेड है, राइट। सो फर्स्ट ड्रॉ में रेड कलर बाहर आएगा, रेड 1 हो सकता है या तो रेड 2 हो सकता है। लेट मी से, चलो एग्जांपल में रेड 2 ले लिया, रेड 2 बाहर आ गया। अभी बैग में तुम्हारे पास कितने बॉल्स बचे हैं? यू हैव रेड 1, यू हैव ब्लैक 1, यू हैव ब्लैक 2। नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द सेकेंड ड्रॉ एंड यू वांट इन दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्रोवाइडेड रेड हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो नेचुरल है कि भाई अभी सेकेंड ड्रॉ के टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2c1 upon 3c1 2/3 बढ़ गया। सो नेचुरल है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट। अगर वही तुमने b by a dash किया, सो नाउ यू नीड टू लुक इन p of a dash and then again you have to take intersection of a dash with b. So this time you will say first ball is black. अब ये नेचुरल प्रोसेस में देखते हैं कि भाई फर्स्ट बॉल ब्लैक हुआ तो क्या हो जाएगा। सो अगर वो यहां पे लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट बॉल ब्लैक हुआ तो या तो ब्लैक 1 रहेगा या तो ब्लैक 2 रहेगा। तो सपोज ब्लैक 2 आ गया तो फिर अभी एक नया बैग में हम लोग को सिनेरियो बताना पड़ेगा। द बैग विल हैव नाउ रेड मोर बिकॉज द रिप्लेसमेंट विल नॉट बी टेकिंग प्लेस। And now if anybody asks you probability of black provided black was there in the first draw, दोनों draws में अपने को black ही लेना है, so black provided black, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं मैं बैग में देख के कि अभी हम लोग सेकेंड ड्रॉ परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं कर रहे इसमें। फर्स्ट ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी हाफ है, राइट। रेड वी आर गोइंग टू टेक ना, रेड इज 2/4। सो फर्स्ट ड्रॉ में हम लोग को रेड चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/4। वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक चाहिए, बट अब लोग सेकेंड का ही कंसिडर कर रहे हैं, ब्लैक प्रोवाइडेड ब्लैक। सो ब्लैक प्रोवाइडेड ब्लैक में
इस ड्रॉ में अभी हम लोग बैग देखते हैं तो हमारे पास 3 बॉल्स है, उसमें से एक ही ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल। सो नेचुरली प्रोबेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज पहले ड्रॉ में अगर ब्लैक बॉल आया है तो कंडीशन के हिसाब से सेकेंड बैग में सेकेंड टाइम जब ड्रॉ करने जाएंगे तो ब्लैक कम हो गया है, देख रहा है आपको कंपोजिशन ब्लैक कम हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल सेकेंड टाइम प्रोवाइडेड फर्स्ट वाज आल्सो ब्लैक कम हो जाएगा। यू कैन सी बाय सैंपल स्पेस आल्सो पी ऑफ बी बाय ए डैश चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ए डैश जो है ये रीजन है विच इज एक्सक्लूसिव टू ए, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव विच इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये ए डैश है। अब इसमें ये रहा occurrence of B. So occurrence of B provided A dash has already occurred is 2 by 6 and that is 1 by 3. So by sample space also we can calculate. अब यहां पे क्या हो रहा है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर occurrence of A or non-occurrence of A, if it has the capacity to change the probability of B, then we say the events are डिपेंडेंट। सो यहां पे इवेंट्स क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है, यहां पे इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, ओके, बिकॉज अकरेंस ऑफ ए और नॉन अकरेंस ऑफ ए चेंजेस द प्रोबेबिलिटी फॉर बी। यहां पे आते हैं, राइट, वी कम हियर, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट what is probability of event A. So red in first draw, red in first draw, ये सारे sample points है, second draw में red आया black आया फर्क नहीं पड़ता, but there has to be red in first draw, 6 by 12 half। अगर हम लोग P of B find करते हैं, that is probability of black in second draw, you can see sample spaces as probability of event B, you can see it is going to be 6 by 12, that is half, okay, sorry, it is not 6 by 12 here, it is 8 by 16, right, it is 8 by 16 half। so black ball अगर डायरेक्टली ऐसे फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होना चाहिए सैंपल स्पेस के हिसाब से, तो we say it is 8 by 16 half probability of getting black ball in second draw, यहां पे red in first draw। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं B by A, that is probability of getting black ball provided red has already occurred, सेम लॉजिक रहेगा। हम लोग यहां पे बोलेंगे कि सैंपल स्पेस जो है वो अभी हम लोग का बन जाएगा इवेंट A, एंड इवेंट ए के अंदर बी का प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड कर लो जरा। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, और यू कैन से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ ए, 4 by 8 इज हाफ, राइट। दैट इज द लॉजिक हियर कि आप बी बाय ए डैश भी फाइंड करो, इक्वल रहेगा। सी बी बाय ए डैश फाइंड करेंगे तो यहां पे आएगा पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए डैश, ओके। सो एज आई सेड बी बाय ए डैश लेना है, ए डैश लेना है मतलब ये हो गया बाहर का हम लोग का ए डैश, उसमें 8 है, 8 सैंपल पॉइंट्स है। सो 8 by 16 आएगा, 16 मैं नहीं लिख रहा हूं ऊपर। अभी इस 8 में ब्लैक इन सेकेंड ड्रॉ कहां पे है, ये रहा, that is again 4 by 8, that is also half। so probability of event black in second draw provided there is red in first draw, black in second provided red in first is half, red first उसके अंदर black second half है, black second black first, black second black first, understand, provided black in second draw, probability of black in second draw provided there was black in first draw। तो उस चक्कर में अपना सैंपल स्पेस ये हो गया और उसमें भी 4 by 8 हाफ ही आ रहा है।
तो यहां पे ना एक्चुअली में कुछ लेना देना है ही नहीं अकरेंस ऑफ ए और नॉन अकरेंस ऑफ ए का. इट डज नॉट अफेक्ट द probability of event B. In fact, आप क्या कर रहे हो यहां? If you have red 1, red 2, black 1, black 2, ठीक है, आपने बॉल ड्रॉ किया. सपोज बॉल आया रेड, ठीक है, बॉल आया रेड, राइट. बट अगर आप पहली बार बॉल ड्रॉ कर रहे हो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, पहली बार हम लोग बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? So I can say probability is 2/4. 2/4 is half. Suppose red 1 आ गया, ठीक है. अब रेड 1 हम लोग ने देखा, कलर देखा, टाइप ऑफ बॉल देखा, वापस अंदर डाल दिया. तो सेकेंड ड्रॉ के पहले आपके पास सेम बैग आ जाता है. सो इफ यू परफॉर्म सेकेंड ड्रॉ and you ask for probability of red ball again, half. Red one वापस आ सकता है. अच्छा, in fact, you go on, keep on doing. Every draw, the probability of red ball is going to be half, probability of black ball is going to be half, independent of the ball which has come in the previous draws. अंडरस्टैंड दिस. इंडिपेंडेंट वर्ड यहां पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा क्रूशियल है. क्या हो रहा है अगर हम लोग ऐसे देखें तो सैंपल स्पेस में तो हम लोग ने देख लिया b/a फाइंड करो हाफ है, b/a' फाइंड करो हाफ है. बट ऐसा क्यों हो रहा है? लॉजिकली स्पीकिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन एनी ड्रॉ प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट वाज रेड और फर्स्ट वाज ब्लैक doesn't matter at all. You can see how the bags go forward here and how the bags are going forward here. देखो यहाँ पे फर्स्ट बैग है, फिर बॉल निकाला, फिर हम लोग के पास प्रॉब्लम हो गया, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, तो सेकेंड में से एक बॉल कम हो गया. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है. Every time the number of balls is going to be same and therefore every time the probability is going to be same. It is going to be half. So probability of getting black ball not in just second draw, in any draw is independent of the previous draws. It is just like tossing a coin. आप coin toss करते हो, first toss में heads आया या tails आया, probability क्या है? half है. Suppose heads आया, ठीक है, अब वापस coin को उठा लिया. second toss के पहले अब वापस आप सोचोगे कि अभी क्या आना चाहिए heads और tails का probability? Answer is half. थर्ड टॉस के पहले अगर आप सोचोगे हाफ, राइट. सो कोई भी टॉस के पहले अगर आप सोचोगे कि आउटकम का प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज गोइंग टू बी हाफ, राइट. सो इट इज लाइक दिस ओनली. एवरी ड्रॉ के पहले अगर हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, अगर हम लोग सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा यहां पे, रेड बॉल का हाफ, ब्लैक बॉल का हाफ. सो इट इज नॉट लाइक दिस केस. पहले रेड हुआ तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी 2/3 ज्यादा है, पहले ब्लैक हुआ तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी 1/3 कम हो गया. यहां पे पहले ब्लैक है या रेड है या फर्क नहीं पड़ता है. इट डिपेंड्स, इट डज नॉट डिपेंड एट ऑल ऑन द प्रीवियस ड्रॉज. सो प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम एंड देयरफॉर वी से कि यहां पे जो हम लोग के पास इवेंट्स है उसको हम लोग ने नाम दे दिया है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, सो independent events and this is example of dependent event. So whenever replacement comes, whenever coin का sum comes, whenever rolling a die का sum comes, उसमें भी वैसा ही होता है. First आपने die अगर roll किया, what is the probability of getting an even number? You can say 2, 4, 6, right? Probability will be 3/6, half. अच्छा देख लिया कलर, हाँ इवन का नंबर देख लिया, इवन नंबर है.
चलो अभी उसको भूल जाओ, वापस मुझे डाई रोल करना है सेकेंड टाइम अगर मैं डाई रोल करूंगा, अगेन इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी हाफ ही है, इररिस्पेक्टिव पहले इवन आया है कि नहीं आया है, वी डोंट नो, राइट। इवन आया होगा तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा, अगेन प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम। एवरी ट्रायल बिफोर you roll the die, every time the probability of getting an even number and probability of getting an odd number remains the same. It does not change with the outcomes which has come before that rolling. We can say that, right? Tossing the coin में भी ऐसा ही होता है। बेसिकली ऐसे जब सैंपल स्पेस बनता है, रिप्लेसमेंट जहां पे अलाउड है वहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाता है, और जहां पे रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है वहां पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपने पहले क्या ड्रॉ किया है वो वापस यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके कारण प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाता है। तो दैट इज द सिंपल लॉजिक। विदाउट रिप्लेसमेंट में आता है डिपेंडेंट, विद रिप्लेसमेंट में आता है इंडिपेंडेंट। नाउ वन लास्ट पॉइंट हियर इज, ये भी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था कि डिपेंडेंट इवेंट्स में अगर हम लोग P of A इंटरसेक्शन B लिखने जाए तो इट कैन बी रिटन एज P of A into P of B by A। चेक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा B by A के साथ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A multiplied to probability of B provided A has already occurred. This is when you want to find out probability of A intersection B, A and B together. Or it can also be written as, not in this example, but अगर कोई example में B event पहले हो रहा है तो आप लिख सकते हो P of B into P of A by B। ठीक है, अगर B event पहले हो रहा है तो यहां पे वो पॉसिबल नहीं है, P of B into P of A by B पॉसिबल नहीं है। बट अगर कोई जगह पे ऐसा हो रहा है तो, बिकॉज A इंटरसेक्शन B कैन ऑल्सो बी रिटन एज B इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव लॉ अलाउड है। नाउ दैट्स द थिंग। तो ये तो हो गया डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या चेंज है? देयर इज अ चेंज। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए देयर इज अ चेंज। वो चेंज क्या है? इफ आई ट्राई टू नोट दैट तो समझेगा कि यहां पे P of B by A लिखो या B by A dash लिखो या खाली P of B लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम। इनफैक्ट यू जस्ट राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। अब ड्रॉ मत लिखो, चलेगा। फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, फोर्थ ड्रॉ, सभी ड्रॉज में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल तो सेम ही है, इट्स हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी सेम है, इट्स हाफ, राइट। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन फर्स्ट ड्रॉ अलग है, इन फर्स्ट टॉस अलग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन सेकंड टॉस अलग है। नहीं, हर टॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स हाफ है, फिर आपको कितना भी टॉस करना है कर सकते हैं। वैसे ही यहां पे इफ यू write B by A, it has no meaning. If you write B by A dash, it has no meaning, right? So what you do is B by A dash नहीं लिखते, सिंपल रखते हैं। P of A intersection B is P of A into P of B. So that is the multiplication theorem for independent events. Okay, so ये जो है ये अपना डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है मल्टीप्लिकेशन थियरम, और ये वाला जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन थियरम है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में P of A intersection B is very simple. It should be P of A into P of B. That's it. क्योंकि B by A लिख के मतलब नहीं है, B by A लिखो या B by A dash लिखो, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहने वाला है। सो आप जस्ट टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ A
and multiply with the probability of B. That is how the independent events का multiplication theorem works. So very important, multiplication theorem for dependent events, P of A intersection B is P of A into P of B by A. P of A intersection B can also be written as P of B intersection A. So it is P of B into P of A by B, right? But B by A या B by A dash या खाली B सब कुछ सेम ही है for independent events. So in independent events, P of A intersection B is P of A into P of B. Okay? So I hope this example will help you to understand the difference between the dependent and the independent. It's easy. आप खाली इसको कनेक्ट करके रखो कि रिप्लेसमेंट रहेगा. जैसा कि आप डाई रोल करते हो 2 बार तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6 आता है. 6 2 बार आ सकता है. कॉइन्स में भी ऐसा है, हेड्स 3 बार 4 बार 2 बार जितनी बार आप टॉस करोगे आ सकता है. तो व्हेन दैट हैपेंस, रेपिटेशन आता है तो इंडिपेंडेंट, और जब रेपिटेशन नहीं आता है तो यू हैव टू थिंक ऑन द लाइंस ऑफ डिपेंडेंट. ओके, सो इसके काफी एग्जांपल्स एंड देन द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लास्ट लेक्चर इसका कवर किया हुआ है. नाउ इट्स टाइम टू गो ऑन टू द independent events this time. Okay, so next lecture will be having sums on independent events. Okay, so that's it. That is the difference.